بہت بڑے جیسا سارا ملک ہے، سندھ بھی اس وقت بہت بڑے ایک معاشی اور معاشرتی کرائسس سے گزر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عوامی مسائل جو ہے نا وہ صرف مہنگائی یا بے روزگاری کے حوالے سے نہیں، بلکہ جو سوشل ایمنٹیز ہیں وہ بھی یہاں پہ اب جو ہے نا مفقود ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اگر آپ دیکھیں تو شہروں کے شہر، اور خاص طور پہ کیونکہ کراچی اس وقت جو ہے نا پوری ملک کی اکنامک انجن کو جو ہے نا اس کا ڈرائیور سمجھا جاتا ہے، اور پوری ملک کی اکنامک انجن کراچی سے جو ہے نا وابستہ رہتی ہے۔ تو کراچی شہر سے اگر ہم شروع کریں اور ہم چلے جائیں اندرون سندھ کے اندر بڑے شہر جتنے بھی ہیں، سکر ہو، حیدرآباد ہو، لاڑکانہ ہو، اور سارے کے سارے بلکہ چھوٹے شہر جتنے بھی ہیں، کشمور، باوڑو، گھٹکی، خیرپور، جتنے بھی شہر ہیں وہ سارے کے سارے بہت برے جو ہے نا ایک ایمنٹی کرائسس سے گزر رہے ہیں۔ پانی جو ہے نا پینے کا صاف پانی نہیں ملتا۔ جو اپنی کمیشنز کی اپنی رپورٹس ہیں اس کے مطابق 90% لوگ جو ہے نا زہر آلود پانی پی رہے ہیں۔ ڈرینیج کا سسٹم دے تو وہ کولیپس ہو چکا ہے۔ تعلیمی نظام جو ہے نا ہمارا، میں سمجھتا ہوں سندھ کا نظام سب سے بہتر نظام تھا کہ زمانے میں، پارٹیشن سے پہلے یا پارٹیشن کے بعد، وہ ایسے بہت بڑے ایک انحطاط کا شکار ہے۔ اور ہمارے جتنے بھی نوجوان چاہے ڈگریاں لے بھی لیتے ہیں تو ڈگریاں لیے گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو کوئی پراپر روزگار نہیں ملتا۔ جی عباسی صاحب، اگر ہم دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جی ڈی اے جو ہے ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ کہیں نہ کہیں حکمران جماعت جو ہوتی ہے اسی کے ساتھ اتحادی بھی بن جاتی ہے، اور وزارتیں جو ہیں کہیں نہ کہیں وہ بھی ملتی رہتی ہیں۔ تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو اگر ہم ایک پارٹی پہ بلیم لگائیں، الزام لگائیں، جو کہیں نہ کہیں ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کے رسپانسبل، اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں آپ لوگ بھی نہیں ہیں؟ دیکھیں جی، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بیسیکلی الائنس ہے جو کہ 2018 کی الیکشن سے پہلے فارم ہوا۔ جی اس سے پہلے جو بھی الائنسز بنے سندھ کے اندر وہ تقریباً الیکشن کے بعد جو ہے نا وہ ختم ہوتے رہے ہیں۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس واحد الائنس ہے جو کہ گزشتہ الیکشن سے پہلے بنا۔ یقیناً ہم نے جو ہے نا اتحاد کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ وفاق کی لیول پہ، اور اسی طرح جو ہے نا سندھ کے اندر بلکہ یہ تھا کہ جی ہمارے جتنے بھی ایم پی ایز تھے وہ اپوزیشن میں بیٹھے رہے 5 سال، اور یقیناً جتنا بلیم ڈیو ہوتا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اوپر، اس میں سے پارٹلی جتنا بلیم آپ ہمارے پہ ڈال دیں ضرور یقیناً ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ جی کیونکہ جو سندھ کے الیکشنز ہوئے 2018 میں اس پہ سیریس ہماری ریزرویشن تھی، جہاں اور جگہ کہتے تھے کہ کچھ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے تو پھر سندھ کے اندر تو اس سے بھی زیادہ سلیکٹڈ گورنمنٹ تھی۔ تو یقیناً جو ہے نا ہم یہ اتنا بلیم ضرور ہم اپوزیشن کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ جتنا ہونا چاہیے، لیکن یقیناً ہمارے کوئی اس گورنمنٹ کے اوپر یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ہماری اتنی وہ تھی کہ ہم اس کو یہ ٹوٹلی ہم اس کو ہم ڈکٹیٹ کرتے۔ ایک اور چیز آپ کا سوال جو ہے وہ عباس صاحب سے ضرور کیجیے گا۔ شاہدہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، ان کو بھی آج کے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم شاہدہ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ گڈ مارننگ۔ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک، گڈ مارننگ۔ اچھا جی، یہ بتائیے گا کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں تو ریسنٹلی انٹرا پارٹی انتخابات جو کہ پی ٹی آئی کے ہوئے، اس کے بعد جو آنے والے انتخابات ہیں اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ یہ موقف ہے ان کا کہ پہلے ہی الیکشن سے سلیکشن ہوئی ہے، تو پارٹی کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹرانسپیرنسی انتخابات کی جو ہے وہ مشکل ہو سکتی ہے آنے والے انتخابات میں؟ لیکن جہاں تک رہا پاکستان تحریک انصاف کے انتخابات کا معاملہ، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کے اپنے جو پارٹی کے ان کے ورکرز ہیں، جو ان کے ممبرز ہیں، ان کو خود ہی اعتراضات ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں الیکشن کمیشن کو تمام تر تحفظات جو ہے وہ خود دور کرنا چاہیے، اور آنے والے الیکشن کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے ہی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کو اپنا منصفانہ اور غیر جانبدارانہ رول پلے کرنا ہوگا، کیونکہ آئین کے تحت تو 90 ڈیز کے اندر جو ہے انتخابات کمپلسری تھے، لیکن الیکشن ڈیلے کنٹینیو ہوتے رہے اور ابھی تک شیڈیول اناؤنس نہیں ہو سکا۔ حالانکہ کل بھی کورٹ نے ایکشن لیے اور سیکریٹری فائنانس کو جو ہے بلا کر انہیں پابند کیا کہ فوری طور پہ فنڈز کا جو ہے وہ اجرا کیا جائے، تو ہم بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں۔
जी हरमीत। शायद साहब एक और चीज इलेक्शन को- अगर हम देखें, जो सिचुएशन है, एक तरफ तो आप लोग आए और कहीं ना कहीं जो नून लीग की नैया थी बकौल जरदारी साहब के हमने बचाई, अब अगला मौका हमें देना चाहिए। कल उन्होंने ये भी कहा कि ये जो नवाज शरीफ साहब हैं इमरान खान के बाद ये लाडले बल्कि महा लाडले बन चुके लाडले हैं। प्लस। तो ऐसे में सारी सिचुएशन में अगर हम देखें, आप तनो तनहा आपको कर दिया गया, जीडीए भी कहीं ना कहीं और चली जा रही है, एमक्यूएम भी चली और जा रही है, तो अकेले ये इलेक्शन लड़ना कहीं गिला शिकवा है नून लीग से, या आगे इलेक्शन के बाद फिर कहीं ना कहीं वजारत बांट Alliance लेंगे होगा। सारे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी आप उठा के देखें, हमारी 56 साल की से तवील हिस्ट्री है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और हमने कभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस करके इलेक्शन नहीं लड़ा, और हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हम अपने मैनिफेस्टो के साथ उतरते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना वोट जो है पूरे मुल्क में देखती है कि अब कितना इंक्रीज हुआ है, और ये सारी चीजें कि हमें जरूरत नहीं है किसी के अलायंस की, और ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ, ये 1976 से हमेशा जब भी आपने देखा कि जब नेशनल अलायंस बना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बना, उसके बाद तमाम पार्टीज ने जब भी इलेक्शन हुए, जीडीए का ये पहली मर्तबा नहीं है, 2008, 13 और फिर 18 और फिर अब वो उनके अपने मेंबर्स जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजरिए से मुतासिर होकर पीपल्स पार्टी में शामिल होते शायद चले साहब जा आप रहे हैं। ठीक तो कह देखिए, रही हैं, लेकिन सहारों की क्लीन उन्हें स्वीप करने के लिए भी तैयारी और बैकग्राउंड जो है उसको बड़ा कीप इन माइंड रखना पड़ता है। आप क्या समझते हैं सबसे ज़्यादा, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली अलायंस की, ये तो जोड़ तोड़ जो हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं इस हवाले से कि क्या अगर सूबाई असम्बली की बात की जाए या कौमी असम्बली की बात की जाए, तो क्या क्लीन स्वीप किया जा सकता है? किसी पार्टी को सोलो फ्लाइट के थ्रू चल सकते हैं, या आपके अगर अपने अलायंस की बात करें तो आप लोग का इस हवाले से क्या प्लान है इंतखाबात के बाद खास तौर पे? देखिए, अभी तो पाकिस्तान पीपल्स देखिए जी, पार्टी मैं ने पहले पहले तो, तो ये किया कि हम अपने मैनिफेस्टो के साथ अपनी आइडियोलॉजी के साथ हम उतर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला देखिए, सहारों की उनको जरूरत पड़ती है जो डूब रहे होते हैं, और जिनकी अपनी आपने देखा कि जीडीए की माजी में क्या कारकर्दगी रही और क्या उनका अवाम ने पजीराई रही, इसी तरीके से पीएमएलएन है, एमक्यूएम है, जेयूआई है, सभी भी इनके अवाम शाहिदा साहब एक और चीज, सफदर साहब आपकी तरफ आऊंगा। अगर हम देखें ये जो सूरत हाल है, पहले से कहा जाता है कि सदर तो हमारी पार्टी का होगा, मौलाना साहब ने तैयारी कर ली है, ऐसे में शेरवानियां भी सिलवाई गई हैं, और कहीं ना कहीं नून लीग वालों से जब हम मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि उनको वजारतें पहले से मिल चुकी हैं, मनसबें तकसीम हो चुकी हैं। सर, ये जो तासुर है 88 में देखे, 93 में देखे, 97 में देखे, 2002 में देखे, ये इलेक्शन से पहले शेरवानियां जो सिलवाने का रिवाज है कब खत्म होगा? पॉलिटिशियन है, कहीं इसके लिए कोई पार्लियामान में जाके कोई कभी काम नहीं किया, आप लोगों पे भी जिम्मेदारी आयद होती है। वैसे सर आपसे सवाल है। देखिए जी, अभी तक बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ। मेरी जी सर बोले। मेरी नज़र में देखें, इसमें कोई शक नहीं कि सियासतदानों ने अपनी पॉलिटिकल स्पेस लूज की है। अगर आप 70 की असेंबली को देखें और फिर 88 को देखें तो ग्रेजुअल एक आपको डिटीरिएशन नजर आएगी। उसमें यकीनन जिस तरह आपने कहा कि हमें अपना उसका ब्लेम लेना चाहिए कि हम इस सारे पॉलिटिकल अमल के अंदर सियासतदान ऐसे ऐसे रिडल्ट होते चले जा रहे हैं, और जो पाकिस्तान के जो इस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं वो ऐसे ऐसे हावी होते चले जा रहे हैं। इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। और जहाँ पे मैं शायदा मेरी छोटी बहन है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, पहली बात होगी जीडीए बनाई 2018 के इलेक्शन से पहले है। इससे पहले क्या हुआ मैं उसको नहीं कुछ भी मैं उसमें तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन 2018 के इलेक्शन है जहाँ आप ये कहते हैं कि जी वफाक के अंदर जो सिलेक्शन थी तो सिंध के अंदर भी ऐसी वैसी सिलेक्शन थी जैसे वहाँ थी, तो उसके जो नतायज है वैसे ही डिस्प्यूटेड है, और अब तो इलेक्शन और डिस्प्यूटेड होता चला जा रहा है। आज जो अगर आप देखें तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो अब हर तरफ से एक किस्म के जो ना ये अलगार है कि भाई हमें तो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। जहाँ डिमांड हो रही है कि जी वफाक के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो हमारी डिमांड है कि सिंध के अंदर कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस सारे अमल के अंदर, इस सियासी अमल के अंदर जो सियासतदानों की अपनी पोजीशन है वो बहुत कंप्रोमाइज हो चुकी है, और हम ऐसे ऐसे जो पॉलिटिकल स्पेस है उसको हम लूज करते चले जा रहे हैं। और जब तक जो है ना हम अपनी, और ज़ाहिर है उसकी वजह बेसिकली ये कि अवाम का जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हम जो है ना अवाम के मसाइल को जो बढ़ते चले जा रहे हैं उसको हम कोई न कोई किसी न किसी अंदाज में, ठीक है हम एक अपनी पॉलिटिकल जंगें तो लड़ लेते हैं, एक दूसरे को हम ब्लेम भी कर लेते हैं, लेकिन ये जो अवाम के मसाइल हैं वो वहीं के वहीं खड़े हैं, वो बहुत के जो डिटीरिएट हो रही है उनकी पोजीशन इससे ज्यादा। कि अगर आम अवाम की बात करें, उनके मसलों की बात करें, उनको एड्रेस करने के लिए पार्टी जो है वो क्या नैरेटिव लेके तमाम तरह पार्टीज जो है वो इंतखाबात में उतर रही है। शाहिदा साहब आप बताइएगा, इंतखाबात से पहले एक दूसरे के मुखालिफ, इंतखाबात के बाद एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई
देते हैं, हम क्यों भूल जाते हैं आपके साथ जो इस वक्त हो रहा है, जो पहले हुआ, हम इंतखाबात के बाद अगर साथ देखते हैं इन एनी केस, जब कहा जाता है कि मुफाहमत के बादशाह है, वो आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो तब भी हम यही कहेंगे कि नहीं सोलो ही चलना है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी की, हम खुद ही कर लड़ेंगे इंतखाबात, खुद ही बनाएंगे हुकूमत। देखिए, जहाँ तक इंतखाबात की बात रही कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने मैनिफेस्टो, अपनी आइडियोलॉजी के साथ आवाम में जाते हैं, और जो उन्होंने माजी में अपना कारकर्दगी की होती है उसकी बेस पर वो आवाम के साथ और आने वाले वक्त के लिए इन फ्यूचर जो है कि उनके क्या प्रोग्राम्स है वो लेकर जाते हैं, और आवाम उनके प्रोग्राम्स को देकर उनको पसंद करे या रिजेक्ट करे, वोट दे या ना दे। उसके बाद जब हुकूमत बनती, देखिए हम हैं पाकिस्तानी हैं, हम बीइंग पाकिस्तानी, हमें पाकिस्तान के मफाद के लिए काम करना होता है, हम एक दूसरे के कोई पर्सनल दुश्मन नहीं होते। और मैं समझती हूँ कि जब हुकूमत बनाई जाती है तो उन तमाम चीजों को मद्देनजर रख के, पाकिस्तान के मफाद को देख के, पाकिस्तान की तरक्की को देख के, पाकिस्तान की खुशहाली को देखकर, भाई साहब एक और चीज, अगर हम देखें इलेक्शन कमीशन पे, एक तो एमक्यूएम ने भी एतराजात जो हैं वो सिंध में शुरू किए हैं, और इसी तरह अगर हम इधर बात करें, इस वक्त सिचुएशन ये है कि हल्का बंदियां जहां पे हुई हैं उस पे भी एतराजात बहुत ज्यादा आ रहे हैं। एक तरफ तो अगर बल्ले का निशान नहीं होगा, एक तरफ जो ग्राउंड रियलिटी वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी को महदूद किया जा रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है, सिर्फ एक पार्टी के लिए जो है राय हमवार की जा रही है। अगर बल्ले का निशान हटा दिया जाता है, लिया जाता है, और कहीं ना कहीं जिस तरह पार्टी को दीवार से लगा दिया गया, तो ये इलेक्शन कितना मुतनाज़ होगा। और ये भी बताइएगा कि क्या इलेक्शन आपको नजर आ रहा है अब्बास साहब? देखिए जी, बात है कि इसमें कोई शक नहीं कि पॉलिटिकल बैटरग्राउंड जो है वो पंजाब के अंदर है। ये एक पाकिस्तान की जो भी पॉलिटिकल डायनामिक्स है उसके अंदर पंजाब का रोल, कौमी असेंबली के हवाले से, क्योंकि वहाँ 150 सीटें तो बहुत यानी एक किस्म का हैवी वेट सूबा है, जहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो अल्टीमेटली डिटरमिन करती है अपने मुस्तकबिल के जो भी वज़ीर आज़म होता है। इस वक्त यकीन इस वक्त जब मियाँ साहब वापस आए तो यकीन उनको एक फैसिलिटेशन मिली है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम इसमें वो डिनाई करें तो वो एक नामुनासिब सी बात होगी। उनको फैसिलिटेट ज़रूर किया गया है, और जितने भी ये केसेस के हवाले से जहाँ पहले उनकी कोई सुनवाई नहीं होती तो एकदम जो सुनवाई होनी शुरू हुई, तो एक फैसिलिटेशन का प्रोसेस ज़रूर है। लेकिन एक एक्सपेक्टेशन भी है मियाँ साहब से। एक्सपेक्टेशन ये है कि वो अपनी जो पार्टी जो 2019 में वो छोड़ के गए थे PMLN, उसको दोबारा रिवाइव करेंगे। जो 16 माह के अंदर, अब जब पीपल्स पार्टी ये जिक्र करती कि जी हमारा क्या रोल है, तो ये 16 माह के जो गवर्नमेंट थी उसमें पीपल्स पार्टी का वही रोल है जो PMLN का है। आप बैठ के उनके पूरे 16 माह के अंदर आप उस गवर्नमेंट को सपोर्ट करते रहे हो। जो महंगाई और बेरोजगारी का बुरा हाल हुआ वो उसके अंदर बराबर के शरीक हैं। आप किस तरह उससे विड्रॉ कर सकते हैं? आप 16 माह की परफॉर्मेंस से पीपल्स पार्टी किस तरह अपने आप को पीछे कर सकती है? वो उनको वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और इसी तरह जैसे आपने जिक्र किया PTI का, तो PTI यकीनन अपने 9 मई के बाद एक बहुत बड़े क्राइसिस और प्रेशर के अंदर है, लेकिन वो अपना वोट बैंक जो है ना उनका अभी तक मेरी नज़र में वो इंटैक्ट है। वोट बैंक खान साहब जो किसी तरीके से भी उसको लेके चल रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त एक बहुत बड़े हम दुराए पे खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी अब जिम्मेदारी है कि वो अल्टीमेटली PTI की इंटर पार्टी इलेक्शंस को और जो ना उसके नतीजे में जो निशान उनको अलॉट होना है उस पर अब क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला आता है, मैं समझता हूँ इससे पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स का जो डिटरमिन करेगी। ये जो आपने सवाल उठाया ना शाहिद साहब के सामने, मैं यही सवाल रखना चाहती हूँ। शाहिद साहब बताइएगा कि जिम्मेदारी लेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आप उनके बिहाफ पे कि जो हमने गवर्नमेंट देखी है 16 माह की, उसमें दोनों ने परफॉर्म किया ना, वजीर खारजा आपका था, वजीर आजम जो है वो नून लीग से था, तो वो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ती है ना, बनती है। देखिए, मैं बड़ा एहतराम करती हूँ सफदर अब्बासी साहब, हमारे सीनियर हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उनका जो तज्जिया है, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो कि लीड कर रहा होता है, जो लीडर ऑफ द हाउस होता है, और जो तमाम कैबिनेट का हेड होता है, उसको उसकी परफॉर्मेंस पे आपको इतना एतमाद है कि आप उसके अलायंस का हिस्सा बन गए। और वो पार्टी जो कि अलायंस में बिल्कुल हुकूमत में हम शामिल थे, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि मुल्क के मफाद में कुछ फैसले ऐसे करने पड़ते, और हम हुकूमत में उस वक्त शामिल हुए जो पाकिस्तान को इस वक्त नाकाबिले तलाफी नुकसान हो चुका था और हो रहा था, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब आ गया था। तो आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो मिनिस्ट्री थी एज ए फॉरेन मिनिस्टर, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की परफॉर्मेंस जिसे दुनिया भर में सराहा गया, और ना सिर्फ ये बल्कि उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस से पाकिस्तान को जो ऐलान हो चुका था
تھا, اسے نہ صرف نکالا بلکہ پاکستان کو جا کے دوبارہ ترقی کے راستے پہ ڈالا. اسی طرح آپ دیکھیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, کلائمیٹ چینج منسٹری, انڈسٹری پروٹیکشن جو پیپلز پارٹی کے پاس تھی, اس کی پرفارمنس دیکھیں. اور وہ ٹھیک ہے شاہدہ صاحبہ, پیپلز پارٹی نے کیا 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 آپ نے بالکل فنگر ٹپس پہ گنوا دیا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ نے وقت دیا, اور صدر صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ. لیکن انتخابات سے پہلے اس کی شفافیت پر جو ہے وہ سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں, اور اگر الیکشن کمیشن کی بات کی جائے, تمام کنسرن ڈپارٹمنٹ کی بات کی جائے, تو اس کی ٹرانسپیرنسی کو میک شور کرنے کے لیے انتظامات کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے.